ઓકે, નેક્સ્ટ છે આપણે અહીંયા લૂપિંગ સ્ટ્રક્ચર. શું છે અહીંયા? લૂપિંગ સ્ટ્રક્ચર. હવે લૂપિંગ સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે ચેક કરો તો આપણી પાસે લૂપ કઈ અવેલેબલ છે. ઓકે, એક વસ્તુ રહી ગઈ હજી, સ્વિચ કેસ. બરાબર, કયું રહ્યું? સ્વિચ કેસ. તો કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે જોયું કે ઇફ કન્ડિશનથી આપણે કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ બનાવી શકીએ. બરાબર, અને નેસ્ટેડ ઇફની અંદર ઇફ કઈ રીતે આપણે મેનેજ કરી શકીએ એ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા. હવે એવું કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ એક છે આપણી પાસે, સ્વિચ છે. કયું છે? સ્વિચ. તો આ સ્વિચ કઈ રીતે મેનેજ થાય તો આપણે જોઈએ અહીંયા. તો સ્વિચની અંદર શું આવે? અહીંયા ફંક્શન, અહીંયા ફંક્શનની અંદર લઈ લઈએ આપણે કે ભાઈ સ્વિચ ડેમો. શું લઈએ આપણે? સ્વિચ ડેમો. હવે એની અંદર હું અહીંયા લઉં છું કે ભાઈ સેમ આપણે 2 નંબર લઈએ યુઝર પાસેથી. ઇનપુટ ટાઈપ લઈ લઈએ આપણે નંબર, અને આપી દઈએ પ્લેસ હોલ્ડર ભાઈ એન્ટર નંબર 1, અને આપી દો અહીંયા આઈડી 1. બરાબર, પછી અહીંયા બીઆર આપી દો એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળી જાય તમને. પછી ઇનપુટ ટાઈપ આપી દો નંબર, પ્લેસ હોલ્ડર એન્ટર નંબર 2, પછી આઈડી આપી દો આઈડી 2, આપી દો બીઆર, પછી આપી દો બટન ઓન ક્લિક, આપી દો રિઝલ્ટ. બરાબર, અને અહીંયા લેબલ આપી દો અને એને આઈડી આપી દો આન્સર. બરાબર, હવે અહીંયા તમારે ફર્સ્ટ શું કરવાનું કે 2 વેલ્યુ લેવાની. કે વેરિયેબલ નંબર 1 ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી 1 ડોટ વેલ્યુ. શું હશે? ડોટ વેલ્યુ. પછી સેમ વસ્તુ નંબર 2 માટે, અને અહીંયા આઈડી 2. બરાબર, શું લીધું આપણે? આઈડી 2. હવે આપણે છે ને યુઝરને ચોઈસ આપવાની. શું આપવાનું છે? આપણે યુઝરને શું ચોઈસ આપશું? તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ અહીંયા લેબલની અંદર, ક્યાં આગળ? લેબલમાં, કે ભાઈ પ્રેસ 1 ફોર, અહીંયા બી ચાલે પણ સિક્વન્સ બનાવીએ આપણે કે 1 ફોર એડિશન ને, અહીંયા બીઆર આપી દઈએ. પછી આપી દઈએ અહીંયા લેબલ પ્રેસ 2 ફોર સબસ્ટ્રેક્શન. હે ને, શું? હા, 2 ફોર સબસ્ટ્રેક્શન. અહીંયા આપી દો બીઆર. હે ને, શું આપી દઈએ આપણે? બીઆર. હવે એના પછી અહીંયા યુઝર પાસેથી આપણે શું કરવાનું? અહીંયા ચોઈસ લેવાની. એટલે આપી દો અહીંયા ઇનપુટ ટાઈપ નંબર આપી દઈએ. બરાબર, અને અહીંયા પ્લેસ હોલ્ડર ભાઈ એન્ટર યોર ચોઈસ, અને આઈડી આપી દો અહીંયા સી. બરાબર, બીઆર. સી ચોઈસમાં સી આપી દીધું તમે. હવે અહીંયા વેર ચોઈસ, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, એનો આઈડી શું આપી મેં અહીંયા? સી ડોટ વેલ્યુ. બરાબર, શું અહીંયા? વેલ્યુ મળશે અહીંયા. એટલે આપણને ચોઈસ મળી, આ 2 નંબર મળ્યા. બરાબર, હવે સ્વિચ કેસનો યુઝ કરીશ કે સ્વિચ એની અંદર શું આવશે? ચોઈસ. ચોઈસની અંદર શું આવે? ઓલવેઝ કેસ આવે. શું આવે? કેસ. તો અહીંયા કેસ 1 આપણે શું લીધું છે અહીંયા ઉપર? તો 1માં શું થવું જોઈએ? એડિશન. તો અહીંયા હું શું કરીશ?
હા, અહીંયા હું શું કરીશ કે ભાઈ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી શેમાં બતાવવાનું આપણે આન્સરમાં ડોટ ઇનર એચટીએમએલ શું હશે ઇનર એચટીએમએલ. હવે શું થવું જોઈએ નંબર 1 પ્લસ નંબર 2. હવે તમને ખબર છે કે નંબર 1 ને નંબર 2 બાય ડિફોલ્ટ કયા ફોર્મેટમાં આવે છે સ્ટ્રિંગ. તો આપણે શું કરશું અહીંયા પાર્સ આઈએનટી બરાબર પાર્સ આઈએનટી પછી અહીંયા પાર્સ આઈએનટી બ્રેકેટની અંદર કમ્પ્લીટ બરાબર નંબર 1 અને નંબર 2 પછી અહીં શું આપવાનું બ્રેક. બ્રેક કેમ આપીએ કે આગળનું સ્ટેટમેન્ટ પછી ના ચાલે. કેસ 2 document dot get element by id answer dot inner html is equal to plus number 2 પતી ગયું. એ ત્યાં ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ટેક્સ્ટમાં જ પ્રિન્ટ કરે ત્યાં બ્રાઉઝર ઉપર. પછી અહીંયા એક આવે ડિફોલ્ટ સોરી અહીંયા બ્રેક આવી દો પહેલાં પછી એક આવે અહીંયા ડિફોલ્ટ બરાબર. ડિફોલ્ટમાં શું આપવાનું આપણે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી અહીંયા આવશે આન્સર ડોટ ઇનર એચટીએમએલ પ્લીઝ એન્ટર માઇનસ આવશે પ્લીઝ એન્ટર કરેક્ટ ચોઈસ है ना. બ્રેક ફંક્શન કોને આપી દેવાનું અહીંયા ઓન ક્લિકમાં સ્વિચ ડેમો કોપી વાત ઓકે એન્ટર યોર ચોઈસ. મારે એડિશન કરવું છે 2 નંબર આપો 100 100 અહીંયા આન્સર આવવું જોઈએ. પ્લીઝ એન્ટર કરેક્ટ ચોઈસ 1. અચ્છા એને બી શું આપવું પડશે પાર્સ એન્ડ આ 2 એક 0 આઈડિયા આવે. આ છે આપણું સેમ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ જ છે જેની અંદર તમે સ્વિચ કેસનો યુઝ કરી શકો છો. ક્લિયર. ઇફ આવે તમારે ઇફ એલ્સ ઇફ આવે નેસ્ટેડ ઇફ આવે એલ્સ આવે પછી સ્વિચ આવે આટલા યુઝ થાય બરાબર. એના પછી છે લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ બધા. તો પાંચમાની અંદર આપણે જોઈએ લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ. હવે લૂપિંગની અંદર કયા કયા લૂપ છે ફોર લૂપ છે બીજું છે આપણી પાસે વાઇલ લૂપ અને ત્રીજું છે આપણી પાસે અહીંયા ડુ વાઇલ લૂપ. 3 લૂપ છે બરાબર. તો અહીંયા એક લેબલ લઈ લઉં આઈડી આપી દઉં આન્સર અને એક અહીંયા બટન ઓન ક્લિક ગેટ ઇન્ફો સ્ક્રિપ્ટ ટેગ લઈ લો ફંક્શન ડેમો બરાબર. અહીંયા ફોર શું આવશે ફોર લૂપનો સિન્ટેક્સ શું છે ફોર પછી ઇનિશિયલાઇઝ તો લેટ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બરાબર. લેટ એને લખવું પડશે કેમ લેટ એટલે શું ઇનિશિયલાઇઝ જ્યારે કરો ફર્સ્ટ ટાઈમ એ બ્લોકની અંદર જ ત્યારે તમે એને એક્સેસ કરી શકો. વેર છે એ બધે એક્સેસ થાય અને એની વેલ્યુ રીચેન્જ થાય. અહીંયા લેટ શું છે ઇનિશિયલાઇઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 શું લખવા દો ડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ લખી શકાય. એટલે હવે ડેટા ટાઈપ છે ને આટલા ટાઈપ ડેટા ટાઈપ હોય છે.
જો વેરિયેબલ આ રીતે તમે કન્ટેનિંગ કરી શકો વેર લેટ અને કોન્સ્ટ. હવે લેટ એટલે શું છે? જો લેટ કીવર્ડ 2015માં ઇન્ક્રીઝ થયો. જો વેરિયેબલ ડિક્લેર લેટ હેવ બ્લોક સ્કોપ, જ્યાં ડિફાઇન કર્યો હોય ને ત્યાં જ એક્સેસ થાય. એટલે કઈ રીતે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ હેડ ગ્લોબલ સ્કોપ એન્ડ ફંક્શન સ્કોપ બે છે. બીજું અહીંયા તમે જે લેટ યુઝ કરો અહીંયા, તો લેટ મસ્ટ બી ડિક્લેર બિફોર યુઝ છે કે પહેલાં એને શું કરવું પડે? મારે ડિક્લેર કરવું પડે. તો વેરિયેબલ ડિક્લેર કેન નોટ બી રીડિક્લેર, પછી એ વેરિયેબલ બીજી વખત રીડિક્લેર ના થાય. એટલે એ રીતે અહીંયા લેટ જે છે એ શું છે? અહીંયા ડિક્લેર કરીએ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ. પછી એક ડેટા ટાઈપ છે ને ઓટોમેટિક આવે. કઈ આવે? ઓટોમેટિક. ઓટોમેટિક એટલે શું કે તમે અહીંયા કંઈ ના આપો, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો, બરાબર? તો આની અંદર જે નંબર અસાઇન થયો એટલે કે 0, તો આ શું બની ગયું? ઇન્ટીજર બની ગયું. લેટનો મિનિંગ શું છે કે તમે આ વેરિયેબલને રીડિક્લેર ના કરી શકો. એટલે અહીંયા આઈ લેસ ધેન 5 આપી દો, રેડી? પ્લસ. હવે એની અંદર આપણે યુઝ કરી ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. એની અંદર આપી દો અહીંયા આન્સર ડોટ ઇનર HTML ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈને પ્રિન્ટ કરું. શું કરું છું? આઈને પ્રિન્ટ કરું. ફંક્શન પર ડેમો કોલ કરું. જો હવે આન્સર શું આવે છે? શું આન્સર? ખાલી 4 આવ્યા, બાકી ના આવ્યો. કેમ? આપણે I is equal to 5 ને લીધું, less than equal to 5 ને લીધું. લેસ ધેન 5 છે ને, Equal to 5 તો મારે 0 to 4 આવવું જોઈએ ને. 0 to 4 તો આવવું જોઈએ ને. હા 0. એનો મતલબ શું કે ડોક્યુમેન્ટ છે ને એક જ ફરે છે, વેલ્યુ ખાલી ઓવરરાઇટ કરે. તો ડોક્યુમેન્ટને પણ ઇન્ક્રીઝ કરાવવું હોય ને, એ શું લખવાનું? પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખવાનું? આખું પડે છે. બારે ખોલવું પડશે. બારે ખોલે ને થોડી ઓલી હોય એટલું બધું પેલી બાજુ ખોલ દે. બસ બરાબર. એટલે શું આવશે? આઈ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ. હવે શું કે એક વખત લૂપ ફરી પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે એક વખત લૂપ ફરી, એક વાર ડોક્યુમેન્ટ ફર્યું, બીજી વખત તો બીજી વખત. જો હવે આવ્યું. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ લાવું શું કરી શકો? અહીંયા પ્લસ કરીને બીઆર શું આપવાનું? બીઆર. ન્યૂ લાઈનમાં આવશે, બરાબર? આ બીઆર. આ શું છે? આપણું ફોર લૂપ. બીજું આપણી પાસે છે અહીંયા ફોર ડેમો ફંક્શન ડેમો 2. એમાં શું આવશે અહીંયા કે વાહિલ એની અંદર આપણે પહેલાં કહીએ લેટ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, આઈ લેસ ધેન 10 આપી દો. અને અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી આન્સર ડોટ ઇનર HTML પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ, બરાબર? શું આપવાનું? અહીંયા આઈ પ્લસ પ્લસ કમ્પલસરી આપવાનું, અદરવાઇઝ શું થાય? ફરતું રહે. હા, તો અહીંયા ડેમો 2 આપી દઉં, બરાબર? થઈ ગયું 0 to 9. હવે બીઆર ટેગ યુઝ કરી લો તમે, તો એ સેમ વસ્તુ તમને ક્યાં મળશે? અહીં મળશે. ડન. પછી છે અહીંયા ફંક્શન ડેમો 3, બરાબર? અહીંયા લેટ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 while I less than 5 document dot get by id answer dot HTML is equal to plus is equal to I. है ना? हेलो, हाँ हाँ आज चलेगा. अभी लेक्चर स्टार्ट ही है. हाँ
मैं हाँ, 11:30। हाँ, यस। तो अभी लिंक भेजो आपको। ओके, सो यहाँ लूपिंग स्ट्रक्चर, वाइल लूप, वाइल में अंदर फंक्शन बनाया हमने डेमो 3। उसके अंदर क्या है, यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0, और लूप कैसे चलता है, आई लेस देन 5। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी आंसर, ये क्या है हमारा लेबल है। यहाँ पे क्या है, लेबल। लेबल के अंदर वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, उसको आईडी से इनर एचटीएमएल प्रोवाइड किया। देन आई प्लस इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि एवरी टाइम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी जो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। सो दैट्स वाई हियर हम प्रिंट करेंगे डेमो 3। ओके, डेमो 3। ओके, देन एक यहाँ पे रह गया आई प्लस प्लस। ओके, नाउ रन करते हैं इसको। रन करने के लिए यहाँ पे कॉपी पाथ, रन हियर। ओके, इसको रन करते हैं। यहाँ पे गेट इनपुट आ गया 0 to 4। यहाँ पे लूप कितना है हमारा, 5 तक है। अब नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो क्या करेंगे हम, प्लस बी आर। ओके, यहाँ पे इसको रन करो, आ गया 0 to 4, टोटल 5। 0 to 5 now equal to लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। ओके, शैलेश ये हमारा बेसिक लूप था, पहले चला है हमने फॉर लूप। फॉर लूप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, जो आप सी प्लस में करते हो, सी में करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हो बराबर। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एचटीएमएल का जो लेबल होता है ना, उसमें प्रिंट करते हैं। तो उसको आईडी देना पड़ता है। तो आईडी को गेट करने के लिए, यानी उसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए, एक हमारे पास यहाँ पे चेनिंग मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसमें आंसर पास करना है आपको, जो भी आंसर दिया आपने, आईडी दिया हो। उसके अंदर यहाँ पे इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है कि आपके ब्राउजर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करेगी, यानी उसमें आपको आउटपुट देगी इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, प्लस इज इक्वल टू किया है। अब ओनली प्लस नहीं करते यहाँ पे, ओनली इज इक्वल टू करके उसको वैल्यू असाइन कर देते, तो क्या होता, तो जो आपकी लास्ट वैल्यू है ना, वही प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको प्लस निकाल दूंगा, देखो ओनली क्या है, 5। यस, पर हमें क्या चाहिए, एवरी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू दिख रहा है, यानी वो लेबल भी रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस इज, क्लियर। ये बेसिक लूप है। उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप है। तो वाइल लूप के अंदर क्या है, सेम चीज़ होता है कि भाई इनिशियलाइज होता है, कंडीशन होता है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, वैल्यू डिस्प्ले किया है ना। उसके बाद रहता है यहाँ पे डू वाइल। तो यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन डेमो फॉर, यहाँ पे आएगा डू। अब डू का पर्पस क्या है, यहाँ पे डू का मेन पर्पस ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे कंडीशन गलत हो या सही हो। तो उसका सिंटेक्स क्या है, डू, उसके बाद वाहिल आई लेस देन 5। यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आई डी आंसर डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इज इक्वल टू आई I plus प्लस BR. बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस करना कंपलसरी, अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन क्लिक पे डेमो 4 नाम का जो फंक्शन बनाया है उसको रन करेंगे। आ गया 0 to 4, टोटल
5 आपका। सो दोनों में डिफरेंस क्या है वाहिल और डू वाहिल में? तो ये पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, ये पहले एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट टाइम फिर कंडीशन चेक करेगा। तो फर्स्ट टाइम मान लो अगर कंडीशन गलत है तो भी वो एक एक बार तो वो रन कर ही देगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे ये डू वाइल में ये डिफरेंस है भैया। और फॉर लूप में आपको पता है कि आप नॉर्मली फॉर लूप चलाते हो उसमें इंक्रीमेंट होता है, लेस देन कंडीशन होता है एंड इनिशियलाइज होता है। तो ये चीज़ें उसके अंदर तीन होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, एग्जैक्टली तीनों कंडीशन देखने जाओ और तीनों का काम देखो तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस है? तो फिर तीन लूप क्यों बनाई होगी? तीन लूप बनाने का कोई पर्पस लगता है? कुछ तो होगा ना डिफरेंस, तभी तीन लूप बनाई। क्या क्या डिफरेंस है बताओ? हाँ पर अब मान लो मुझे इनिशियलाइज नहीं रखना है, डायरेक्ट कंडीशन रन नहीं कर सकता मैं? देखो, मेन डिफरेंस ये है कि एज पर डेवलपर में ये एक ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके पास ओनली ट्रू एंड फॉल्स है, क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, तो वहाँ पे फॉलो की ज़रूरत है? नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या यूज़ करेंगे? वाइल लूप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वाइल लूप, कि जिसके अंदर आपको कंडीशन दो ही मिलती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या बुलियन कोई वेरिएबल है आपके पास जिसके अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वाइल लूप। पर जहाँ पे आपको इनिशियलाइज भी करना है, कंडीशन भी देनी है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना है, तो वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए फॉर लूप बेटर वहाँ पे सेट हो रहा है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कंडीशन सही है या गलत है पर आपको प्रिंट करना ही है फर्स्ट टाइम, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू वाइल यूज़ करेंगे। अब देखो ये है ना, हमारे डेवलपर्स के ऊपर जाता है, यानी आप डेवलपर्स बनोगे तो उसमें आपको चूज़ करना रहता है। ऐसा आपको कोई सजेशन नहीं करेगा कि भाई ये यूज़ करो ये यूज़ करो। एज एन डेवलपर आपको सेट करना होगा भाई कौन सा लुक फिट बैठेगा यहाँ पे। समझ में आया? तो ये बेसिक लुक है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है एरे। कौन सा टॉपिक है? एरे। अब एरे क्या है समझो। एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद सेम डेटा टाइप। तो एरे का बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे? तो एरे जो है ऑलवेज जो डेटा स्टोर करता है मेमोरी के अंदर वो एक ही लोकेशन पे करता है, और उसके अंदर कंपलसरी इंडेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा वो? इंडेक्स बनाएगा। यानी इंडेक्स किस तरीके से बनाएगा? तो यहाँ पे मान लो 0, और एरे का मस्ट स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है? 0 होता है। तो मान लो आपके पास 1 to 5 के लिए लूप बनानी है, 1 to 5 के लिए आपको डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए उसकी पोजीशन क्या बनेगी? 0 1 2 3 एंड 4। अब मान लो 0 आपको सेट करना है 10, फिर 20, फिर क्या सेट करना है आपको? 30, फिर आपको 40, फिर आपको 50। आइडिया आया? तो ये 0 पोजीशन यानी एरे स्टार्टिंग पोजीशन इज मस्ट बी 0, फिर 1 2 3 अप टू जहाँ तक आपको सेट करना है। और ये क्या करेगा? ये पोजीशन पे डेटा स्टोर करेगा। पर एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज एरे के अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल डेटा एक साथ गेट करना है। क्या करना है आपको? मल्टीपल डेटा एक साथ गेट करना है और उसको आपको प्रिंट करना है सेम टाइम पर। तो वहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स आप लोगे तो अलग अलग वेरिएबल आप कितने प्रिंट करोगे? मेमोरी सेविंग नहीं होगा वहाँ पे। हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा। तो उसका बेटर सॉल्यूशन निकला है यहाँ पे एरे में। तो एरे के अंदर क्या होता है, मान लो अगर आपको 10 नाम स्टोर करने हैं, कितने नाम? 10। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? 10 वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल ले लो और इसके अंदर डेटा स्टोर कर दो। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ एरे किस तरीके से वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
फंक्शन डेमो। ओके, यहाँ पे ले लो कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एरे इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आप सेट करो। अभी यहाँ पे लिख दो एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज, रिएक्ट जेएस, पाइथन। ओके, ये मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर क्या है, सारे डेटा वन टाइप के हैं। अब इसको मुझे प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे लिख दिया मैंने आंसर डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, अब यहाँ पे एरे ऑफ आई, इससे क्या होगा कि एरे में जो जीरो पोजीशन पे है क्या है, एंड्रॉइड, वो मुझे प्रिंट करके दो। तो अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो आपको पोजीशन वाइज डेटा प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं डेमो 3 मैं इसको रन कर रहा हूँ ताकि आइडिया आएगा। आया एंड्रॉइड, तो यहाँ पे क्या किया आपने, एरे की पोजीशन दी, कौन सी पोजीशन है, जीरो। अब यही मुझे फॉर लूप से करना हो तो क्या करेंगे, कौन बताएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल एक ही वैल्यू प्रिंट किया है ना, पोजीशन नंबर जीरो। तो अब फॉर लूप से करना हो तो यस, क्या करेंगे बोलो ध्रुवी। सो सर લેસ ધેન 5, એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવા પડશે, એક 2 3 4 5 એવું ગણવા બેસવું પડશે। देखो सिंपल वे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, ओके, देन आई लेस देन, एरे का नाम क्या है, ए डबल आर डॉट लेंथ, एक प्रॉपर्टी देता है हमें, आई प्लस प्लस। अब इसको कहाँ पे सेट करेंगे हम, इसके अंदर। ठीक है, लूप के अंदर सेट किया, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो की जगह पे आई, और एवरी टाइम प्रिंट हो इसलिए हम प्लस ऐड कर देंगे। एंड प्लस नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो यहाँ पे क्या देंगे हम, बी आर, क्या देंगे, बी आर। क्या, अब इसको रन कर दें, आ गया एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज है पाइथन। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम एरे को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय द फॉर लूप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बेनिफिट है एक समझो, ये एरे के अंदर आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैं 100, तो ये नंबर कौन सा हुआ, इंटीजर, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। आ गया, इट्स assigning any type of value in the array, 100 is that boolean floating value। ओके, सो यहाँ पे जो एरे बनाया है आपने, वो एरे टोटली जो भी आप वैल्यू दोगे उसको एक्सेप्ट कर। यस, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना, चार टाइप के डेटा टाइप है। एक ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नेम ले लिया, क्या दिया मैंने, नेम इज इक्वल टू सीवीसी। तो अब इसके अंदर आपने सेट नहीं किया कि भाई ये स्ट्रिंग होने से, जिस टाइप का डेटा दोगे ना वो टाइप का डेटा टाइप बन जाएगा। एक दूसरा होता है यहाँ पे वेर, एन ए, तो इसके अंदर क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू क्या रहती है
कि आपने अगर दे दिया इसको 100 तो ये बन गया इंटीजर। ओके। एक होता है लेट, जैसे आई, तो आई के अंदर आपने दे दिया 100 तो ये बन गया इंटीजर। फिर होता है कॉन्स्ट, इसके अंदर आप दे दिया स्ट्रिंग तो ये बन गया स्ट्रिंग। अब चारों में डिफरेंस क्या है, ये ऑटोमेटिक है, जो टाइप का डेटा दोगे और रीअसाइन करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। वेरिएबल जो है उसमें भी सेम है, पर यहाँ पे क्या है, इसको आप रीअसाइन कर सकते हो। रीअसाइन मीन्स एक बार आपने एन ए दिया, उसकी वैल्यू 10, फिर आपने अगेन सेट किया 20, तो वही एक्सेप्ट कर लेगा। पर लेट में क्या होगा कि आपने एक बार असाइन किया आई इज इक्वल टू 100, है ना, फिर इसको रीअसाइन नहीं कर सकते आप। फिर कांस्टेंट में क्या होता है कि इसकी वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज तो करनी होती है, पर इसको आप रीअसाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम इसको, रीअसाइन। समझ में आया? तो इसके अंदर आपको अगर टाइप फिक्स रखना है तो आपको इसके अंदर आपके हिसाब से बाइफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप फ्री टाइप असाइन हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता। समझ में आया? तो यहाँ पे जो एरे है, एरे के अंदर जितनी भी आप वैल्यू सेट कर रहे हो वो वैल्यू एक्सेप्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे मेथड बाउंडेशन या कोई डेटा टाइप बाउंडेशन नहीं रख सकते हम। ठीक है, समझ में आया? एरे समझ में आया बेसिक? ओके। सो आज हमने ये टॉपिक चलाए थे। फर्स्ट हमारा है स्विच केस चलाया था एक, दूसरा हमारा टॉपिक है लूपिंग स्ट्रक्चर है, और तीसरा है एरे। एरे के अंदर ये अभी जो बेसिक है वो चलाया है। एरे के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो इसके अंदर है, बाय कंस्ट्रक्टर, बाय मेथड, और ये जो एरे है वो स्टैटिक एरे। क्या है? स्टैटिक एरे। पर अब कुछ ऐसा एरे मुझे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं डायनेमिक वैल्यू असाइन कर पाऊँ। डायनेमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यूज़र से वैल्यू गेट करूं, और यूज़र से वैल्यू जो गेट की है उसको मैं एरे के अंदर स्टोर करूं, फिर उसको मैं प्रिंट करूं कि जो वैल्यू मैंने वहाँ पे गेट की है। तो ये चार तरीके से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने बेसिक जो तीन एग्जांपल्स देखे, एक देखा हमने स्विच केस वाला। स्विच केस में क्या था, आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि स्विच केस के अंदर हमने ये बनाया था कि अगर आपको यूज़र को कोई चॉइस देना है तो दे सकते हो। तो उसमें यूज़र मान लो 1 एंटर कर रहा है, तो उसमें आप कोई भी एंटर किया हुआ नंबर बेस्ड ऑन कंडीशन के, यहाँ पे फर्स्ट आपने एडिशन के लिए किया है, तो यहाँ पे 10 + 10 20 होना चाहिए। अगर आपने 2 चूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्शन। तो ये बाय द फंक्शन यूज़ करके हमने इसको स्विच केस से बनाया हुआ है। ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे कंडीशनल सॉरी लूपिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। और तीसरा हमने देखा यहाँ पे एज अ एरे, स्टैटिक एरे। बराबर, ये हमारा स्टैटिक एरे। यस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम एरे के टाइप्स। मेनली अभी 3 बाकी है, वो हम कल रिपीट कर लेंगे। ठीक है। सो हमारा लेक्चर है 10:30 टू 11:30। ठीक है, वो डेली रहेगा। हाँ, और आप, मैं आपको डेली लिंक सेम ही रहेगा, आप 10:30 ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ओके, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम किया है लेक्चर का वो भी आपको सेंड कर देता हूँ मैं, तो वो भी प्रिपेयर कर लेना। ओके। ओके ध्रुवी। हाँ હા, ત્રણે ત્રણ યુઝર પાસે ડેટા લેવાના કે માર્ક્સ 1, માર્ક્સ 2 એન્ડ માર્ક્સ 3 ટોટલ જે ત્રણ ત્રણ ડેટા લીધા હોય ને. ના ના, અલગથી કેમ ફંક્શન બનાવો? આ અરે આ તમે કેવી રીતે કર્યું અહીંયા ટોટલ? આ નંબર 1 નંબર 2 ના લીધું તમે અહીંયા? તો एडमिन
આ રહ્યો આ અહીંયા. હા તો આ પહેલેથી નંબર લઈ લેવાના ને અહીંયા, 3 લઈ લેવાના અહીંયા. ટોટલમાં શું, ટોટલ જ કરવાનું. બધા માર્ક્સ ના ના, આમાં ને એમાં જ. સરવાળો કઈ રીતે થાય? સરવાળો એન્ટર થાય એટલે સરવાળો થઈ જાય. 3 નંબર એન્ટર કરાવો કે નહીં તમે, પછી એનું ટોટલ કરી દેવાનું ડાયરેક્ટ તમારે. ઇનર ઇનર એસ્ટિમેટ ની અંદર તમારે ડિસ્પ્લે કરાવવાનું. ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર 1 પ્લસ નંબર 2 નંબર 3, ટોટલમાં બધી વેલ્યુ સ્ટોર થઈ જાય એટલે ટોટલ ઇનર એસ્ટિમેટમાં પ્રિન્ટ કરાવી દેવાના. પછી માની લો તમારે પર્સન્ટેજ પ્રિન્ટ કરાવવું છે, તો બીજું ઇનર એસ્ટિમેટ લેવાનું, એટલે લેબલ બીજું લેવાનું. એની અંદર તમારે શું કરવાનું, ટોટલ ડિવાઈડ બાય 3, એટલે પર્સન્ટેજ મળી જાય. હા એ રીતે. હમ? હા શું કહો છો? હા તો હા પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે એમાં. પછી એના યુઝ આગળ આવશે તમારે ઉપ્સ કોન્સેપ્ટની અંદર. બરોબર. ઓકે, હું તમને બધા એક્ઝામ્પલ મોકલી આપું છું. બરોબર. ओके, शरीर आपको भेजता हूँ है ना. હા યુટ્યુબમાં છે, આપી દઉં તમને.